Hello, my dear students. Welcome to our English class. In our today's English class, we are going to complete the question answer portion of our chapter number 14. As you can see on the screen, first of all, what we need to do? Choose the correct options to complete the sentences given below. So the first one is the emperor was very fond of new clothes. Then one day, two dash came to meet the emperor, two weavers. Okay, the cloth was weaved using gold and silk threads. Okay, the emperor was in fact wearing no clothes. Okay, then answer the questions given below. First question is, what was there in the emperor's room? So emperor के रूम में क्या रहता था स्टूडेंट्स? तो देखिए, आपके पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है, in emperor's room. Okay, in emperor's room, there is a, in emperor's room it is surrounded by extravagant clothes including robes, coats and jackets and huge mirrors. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है. ठीक है, चलिए अब सेकंड देखिए. Who came to the emperor and from where? ठीक है, कौन आया था एम्परर के पास और कहां से आए थे? देखिए, so in the room of emperor, two swindlers entered, bowing deeply in respect. Okay, and they came from neighboring town. Okay, they came from neighboring town. This is your answer number 2. चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, आपसे क्या पूछ रहा है. What did the swindlers tell the emperor about the cloth they weave? उन लोगों ने क्या बताया था स्वैंडलर्स ने एम्परर को अपने कपड़ों के बारे में? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए, ये है. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये है, टू swindlers said that we can weave the most beautiful fabrics imaginable with colors, designs and patterns like no other. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आप लोगों का. ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. फोर्थ है, what extraordinary claim did the swindlers tell about the suit they were going to wear for the king? उन लोगों ने ऐसा क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम किया था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इधर है, देखिए. Both swindlers made an extraordinary claim and that claim was, and the most amazing feature, your majesty, is that these clothes are invisible to anyone who is unfit for their position or intolerably stupid. If you permit, we shall be happy to sew you a fine suit. Okay, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है. Now question number 5. Why was the emperor keen to have the clothes woven by the swindlers? Okay, the emperor was very keen to have the clothes woven by the swindlers because, ये है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखिए, because he can find out, okay, because he can find out what man in his kingdom are unfit for their job. Okay, he would be able to tell the wise man from the foolish. Okay, so this is the answer number 5. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे. 6th वन, what did the swindlers demand from the emperor? इन लोगों ने, ओके, swindlers ने क्या डिमांड किया था? देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, ये देखिए. Swindlers demanded a separate room. Okay, this is your answer number 6. Swindlers demanded a separate room where they set up their looms and pretended to work, keeping the gold and silk in a sack for themselves. Okay, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द स्वैंडलर बेफूल द एम्परर? ओके, तो स्वैंडलर्स ने किस तरीके से एम्परर को बेवकूफ बनाया था? ठीक है, स्वैंडलर्स ने यही कहा था कि हम इनविजिबल
कोड बनाएंगे, ठीक है, और ये उसी को दिखेगा जो अपनी पोजीशन के लिए फिट होगा, ठीक है। जो अनफिट होंगे दे आर नॉट एबल टू सी दिस ब्यूटीफुल पीस ऑफ क्लोथिंग, ओके। Then eighth one, was the minister able to see the cloth? What did he tell the emperor afterward? क्वेश्चन नंबर 8 में दो क्वेश्चंस पूछे गए, तो पहले का आंसर है नो, द मिनिस्टर वाज नॉट एबल टू सी द क्लोथ, ठीक है। अब दूसरा का आंसर देखिए, व्हाट डिड ही टेल द एम्परर आफ्टरवर्ड, मिनिस्टर ने क्या कहा था एम्परर से, ठीक है। तो 8th का ये सेकंड पार्ट का आंसर है, द मिनिस्टर आंसर्ड, ओके, मींस द मिनिस्टर टोल्ड that your majesty the fabric is truly magnificent, the pattern and colors are beyond comparison, I think no other king would have such a piece of clothing to flaunt, they request a silk and gold saying that it is necessary to complete what they have begun। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट का आंसर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, okay, question number 9, was anybody in the court able to see the cloth? Why or why not? No, okay, no, anybody who are present in the court are not able to see the cloth, okay, because there is no cloth, okay, there is no cloth, swindlers are making fool to their emperor, okay। Now question number 10, why did the emperor pretend to see the dress and praise it? क्यों pretend किया था ऐसा, okay? तो इसका आंसर आप ऐसे दोगे, द एम्परर प्रिटेंडेड टू सी द ड्रेस एंड प्रेज इट बिकॉज एम्परर वाज ट्राइंग टू मेंटेन हिज डिग्निटी, he said I must go through the procession, they all are not fit to see such a magnificent dress, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर था। 11th क्वेश्चन देखिए, डिड एनीबॉडी डेयर टू टेल द ट्रूथ टू द एम्परर? यस, अ लिटिल बॉय डेयर टू टेल द ट्रूथ टू द एम्परर दैट ही वाज नॉट wearing anything, okay। 12th one, I must go through with the procession, they say are not fit to see such a magnificent dress, could the emperor sense reality? Yes, emperor sensed reality, but he don't want to show himself as a foolish person in front of his entire kingdom, okay। I had walked into the reading room a happy healthy man, oh students, this is not a right, स्टूडेंट्स ये जो लाइन लिखी हुई है ये इस चैप्टर का नहीं है, ठीक है, ये इसके प्रीवियस चैप्टर का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 था, आप लोग देखिए, व्हाट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग डिड द स्वेंडलर से अबाउट द सूट दे वर गोइंग टू वेयर फॉर द किंग, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, इसका भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। चलिए ना सी पार्ट देखिए, राइट द क्वालिटीज ऑफ द पीपल एज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द डायलॉग्स गिवन बिलो, यहाँ पे कुछ डायलॉग्स मेंटेन किए गए हैं, इन डायलॉग्स को आपको पढ़ना है और साथ ही साथ ये डायलॉग किसने बोला है, उसका कैरेक्टर क्या है वो बताना है आपको। जैसे पहला है, these clauses are invisible to anyone who is unfit for their position or intolerably stupid, ये लाइन किसने कही थी, उन दो स्वेंडलर्स ने कहा था, ठीक है। और वो दोनों स्वेंडलर्स क्या थे, कनिंग थे, ओके, थीफ थे, ठीक है। तो ये दो मैंने बताया, बाकी आप बताएंगे, ठीक है। चलिए सेकंड देखिए, वेलकम मिनिस्टर, कम सी आवर प्रोग्रेस, ये लाइन उन स्वेंडलर्स ने बोली थी मिनिस्टर्स को, ठीक है। तो मिनिस्टर को बोला था, तो ये दोनों बहुत ज्यादा पोलाइट बिहेवियर शो करना चाहते थे मिनिस्टर के सामने, ठीक है। आई थिंक नो अदर किंग वुड हैव सच अ पीस ऑफ क्लोथिंग टू फ्लॉन्ट, ये मिनिस्टर ने कहा था किंग से, क्योंकि वो डर रहा था उस टाइम, ठीक है। वो ये डर रहा था कि कहीं मुझे एम्परर मेरी जगह से ना निकाल दें, ठीक है। योर मैजेस्टी द क्लोथ्स आर इंडेड सुपर, यू विल बी द फाइनेस्ट ड्रेस्ड एम्परर, ये किसने बोला था, ये बाकी के और मिनिस्टर्स ने बोला था जिनको राजा ने बाद में भेजा था, वो भी डरे हुए थे, ठीक है। बट ही hasn't got anything on, okay, ये किसके लिए था, ये राजा के लिए था, ठीक है। चलिए, appreciating the text, the emperor's whims for clothes landed him in a very difficult situation, do you find it funny, satirical और ironic? comment। तो सो स्टूडेंट्स, आपके अकॉर्डिंग ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो फनी था, सैटिरिकल था या फिर आयरॉनिक था? देखिए, पहली बात तो ये बहुत ही ज्यादा फनी था, ठीक है, क्योंकि राजा को पता है कि मैं बेवकूफ बन चुका हूं, स्टिल ही इज प्रिटेंडिंग दैट आई एम द मोस्ट वाइज मैन अमॉन्ग माय होल किंगडम, ओके।
Now the second one, my world is full of people who are ready to take advantage of others at every opportunity. How can we recognize such people and expose them? So students, हमारे वर्ल्ड में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं. तो कैसे आप बचोगे ऐसे लोगों से? देखिए, जब कोई एक्स्ट्रा बटरिंग करने लगता है, जब कोई एक्स्ट्रा आपकी तारीफ करने लगता है, तो आप समझ जाइए कि सामने वाला जरूर कुछ प्लानिंग कर रहा है. तो ये तो एक दो तरीके हैं. बाकी आप कैसे और पहचान सकते हो? यू आर गोइंग टू मेंशन अबाउट ऑल ऑफ दिस वेज इन योर नोटबुक. देन the play is an example of high-headedness of people of high rank who are ready to do anything for their own interest. Do you think such people are capable of getting common people rid of their problems? Why not? No, such people are not capable of getting common people rid of their problems because they willingly keep all the welfare of the people aside. Okay, now they only care about for themselves. Okay, so students, अब word power देख लेते हैं. इसमें हमें क्या करना है? So students, word power में देखिए क्या करना है हमें. Some words from the story are given below. Write them in the table as shown in the example. So students, यहाँ पे कुछ words दिए हुए हैं जो कि story में आपके mentioned है. इनको क्या करना है? टेबल में जैसे लिखा है आपको वैसे लिखना है. जैसे noun यहाँ पे gift है, इसका verb gifted होगा. adjective gifted है तो adverb क्या होगा? So students, देखिए इसका जो adverb होगा वो ये होगा. देखिए ed gifted. ओके, देन ये क्या है? कंटिन्यू है. ठीक है, तो ये कंटिन्यूएंस हो जाएगा. यहाँ पे कंटिन्यूएंस आपका आएगा, ये कंटिन्यू है, ये आपका कंटिन्यूअस आ जाएगा. ठीक है, एडवर्ब क्या होगा वो आप बताएंगे. ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पे इसको लिखना है. ठीक है, चलिए ग्रामर पावर देखिए. यहाँ पे हमें रिवीजन करना है. ये क्या है? देखिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो. देयर इज अ मिस्टेक इन ईच सेंटेंस. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वर्ड एंड राइट द करेक्ट वर्ड इन द स्पेस गिवन बिलो. स्टूडेंट्स, ये ना एक पैसेज है. ठीक है, इसमें क्या गलत है वो आप यहाँ लिखोगे, क्या सही है वो आप बगल वाले कॉलम में लिखोगे. जैसे since mindfulness is anything you can. So students, यहाँ पे incorrect is है, तो correct क्या हो सकता है? is not. okay, second देखिए, practice at home with free it often sounds. तो क्या गलत है यहाँ पे? practice at home with free गलत है ये. तो क्या सही होगा? फॉर फ्री. ठीक है, तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप लोग बाकी का भी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे. फिर देखिए, रीड द पैसेज बी. रीड द पैसेज गिवन बिलो. देयर इज अ वर्ड मिसिंग इन ईच सेंटेंस. आइडेंटिफाई द मिसिंग वर्ड एंड राइट इट अलोंग with the words before and after in the space given below. Put a slash at the place where the word is missing. So students, आप लोगों को क्या करना है? इस पैसेज को पढ़ना है. इसमें कौन कौन से वर्ड्स मिसिंग है, पहले जो मिसिंग थे, फिर कौन सा वर्ड आना चाहिए, बाद में कौन सा वर्ड आना चाहिए, आपको यहाँ पे लिखना है. ठीक है, साथ ही साथ आपको स्लैश भी लगाना है जो भी वर्ड्स आपको लगते हैं कि मिसिंग है ये. ठीक है, ये देखिए, many studies have shown spending time. okay, so student देखिए, put a slash at the place where the word is missing. तो वर्ड यहाँ पे मिसिंग है. ठीक है, so देखिए, many studies have shown spending. so before तो टाइम ही आना चाहिए, टाइम यहाँ पे इन आना चाहिए, यहाँ पे ये फिर नेचर आना चाहिए. ठीक है, चलिए फिर दूसरा देखिए, इन नेचर स्पेशली बाय द कोस्ट मेक्स फील गुड. ओके, सो मेक्स यहाँ पे बिफोर में आएगा, मेक्स. ओके, मेक्स अस फील गुड. ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोग बाकी को भी सही करके लिखेंगे यहाँ पे. ठीक है, चलिए आगे देखिए, स्पीकिंग एंड लिसनिंग. इफ यू आर ग्रांटेड अ विश टू बी एन एम्परर फॉर अ वीक, व्हाट वुड यू डू? डिस्कस इन ग्रुप्स द फॉलोइंग. सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को एक ऐसा विश मिलता है कि एक हफ्ते के लिए आप एम्परर हो, तो आप लोग क्या क्या करना पसंद करोगे? ये जो जितनी चीजें यहाँ पे लिखी है वो ग्रुप बना के आप लोग डिस्कस करेंगे. जैसे ऑर्डर्स देंगे आप, जो भी आपके किंगडम में इशू चल रहा है उसको लेके. ठीक है, पीपल यू वुड चूज टू बी योर कोर्टियर. आपके कोर्ट में कौन कौन से लोग होने चाहिए, आप उनको चूज करोगे. फैसिलिटीज यू वुड प्रोवाइड टू द पीपल ऑफ योर कंट्री एंड हाउ यू वुड एंश्योर जस्टिस इज सर्व्ड. ठीक है, बी, लिसन टू द वर्ड्स एज योर टीचर डिक्टेट्स. राइट नीटली एंड करेक्टली. Write an imaginary conversation between the two swindlers where they laughed and talked about the foolish emperor and how they befooled him. So students, इस पूरे चैप्टर में swindlers ने आपस में किस तरीके से foolish राजा का मजाक उड़ाया वो नहीं दिया है. तो आप लोगों को एक imaginary conversation बनाना है इन दोनों
स्वैंडलर्स के बीच में, कि कैसे वो आपस में हंसते हैं जब वो उस रूम में बैठे रहते हैं, कि किस तरीके से उन लोगों ने राजा को बेवकूफ बना दिया। ठीक है, प्रोजेक्ट स्कैन द क्यूआर कोड एंड रीड स्टोरीज बाय हंस क्रिश्चियन एडल्सन। इस स्टोरी को हंस क्रिश्चियन एडल्सन ने लिखा है, तो क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इनके जरिए लिखे हुए और स्टोरीज को आप पढ़ोगे। ये देखिए, यही क्यूआर को आप स्कैन करोगे और जैसे स्कैन करोगे तो इनकी बहुत सारी और आपको स्टोरीज मिल जाएंगी। ठीक है, so student, this is all about our chapter number 14. Okay, now just go thoroughly through this chapter and complete all the exercises. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.